We move on to our debate number one. Even as PFI's link to terror module is being probed, an RJD leader, and a top RJD leader at that, has said that whenever people are caught from Pakistan, they are found to be Hindus or associated with the RSS. Now, if you don't believe what I am saying, listen to what the RJD Neta said. जब जब भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक लोग पकड़े गए पाकिस्तान के एजेंट में, वो सभी आरएसएस और हिंदू लोग थे। इसलिए ये जो कर रहे हैं, हम सब इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। Now that was the comment, and let's open this up. Shehzad Poonawalla, the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party, Ratan Sharda, author, Abdul Basit, general secretary and spokesperson of the RJD, will be joining us shortly. Danish Qureshi, political analyst, completes the panel. Good evening, gentlemen. Shehzad, I want to begin by asking you, what do you make of this comment? He was asked a question on PFI's alleged terror links, and he says, stop demonizing PFI. Whenever Pak agents are caught, they are invariably Hindus. You see, there is a Tushtikarana ka competition, and in that Tushtikarana ka competition, Congress has recently said first right of resources belongs to Muslims in Gujarat. They have had a long history of blaming 2611, Malegaon, Samjhauta, all Islamist terror on Hindus. They've come up with Hindu terror, Hindutva is equal to ISIS. So how can RJD be left behind? And therefore RJD has jumped into the competition. PFI, which is an organization which has been called extremist by Kerala High Court, the NIA has designated as a terror organization. Many states have also requested for a ban, but Congress and RJD both feel PFI is an ambassador of peace, and therefore RJD has come out in defense of PFI. They are okay with the PFI plotting to make an Islamic state in 2047, and they have come out and given a clean chit once again, blaming all Hindus. So they are trying to be the bigger party in Tushtikarana. This is the competition between them, but there's nothing new. This is the DNA of RJD, because this is the same RJD which had come out in defense of Simi when Simi was banned. Here is the statement: Lalu and Mulayam bats for Simi. This is the statement of Economic Times. It has been published. When Simi was banned by Supreme Court, Lalu Prasad Yadav said, "Masumo ka jhund hai Simi." Ratan Sharda, I am coming to you, but let me take the response from Abdul Basit, the general secretary spokesperson of the RJD. Abdul Basit साहब, आपने तो ये कमेंट सुना होगा जगदानंद सिंह का। क्या मतलब है उनका जब वो कहते हैं कि जब भी पाक एजेंट्स पकड़े जाते हैं वो हिंदू होते हैं? देखिए, पाकिस्तान से बदस्तूर हिंदुओं का आना सन 47 के बाद, उसके बाद 90 से बदस्तूर आना जारी है, मगर ऐसा नहीं है कि वहां से कोई पाकिस्तान से कोई आतंकवादी आ रहा है। हमारा जो रॉ की जो एजेंसीज हैं, आप सवाल शायद समझे नहीं अब्दुल बासित साहब, या आप बयान नहीं समझे। आप बता दीजिए आप क्या नहीं समझे, तो मैं आपको फिर वहां से समझाऊं। आप बयान नहीं समझे या मेरा सवाल नहीं समझे? नहीं, मैं आपको मैं आपका सवाल भी समझ गया, बयान भी समझ गया। दोनों बातों के ऊपर मैं बात बता रहा हूँ। नहीं तो पहले बयान से शुरू करते ना। बयान आप तो समझ गए, मेरे समझ में नहीं आया। पाकिस्तानी देश में नहीं, बयान देखिए, बाबू जगदानी जी अपनी बात रखी है। वो उसने किस पर्जुलाइजेशन पे किया है, वो उनकी अपनी निजी राय है। बाबू निजी राय कैसे हो सकती है प्रदेश अध्यक्ष जी? मगर मैं आपको एक बात कैसे हो सकती है? ये कि हिंदू बैशिंग जो चल रही है निजी राय है। ये वो कह रहे हैं कि जितने भी पाक दलाल है, पाक एजेंट्स हैं, वो सारे हिंदू हैं, सारे आरएसएस के हैं। निजी राय नहीं, वो आरएसएस तो देखिए देश में किस तरह का काम कर रहा है पूरा देश अच्छी तरह जानता है, मगर उनके सामने आप भी नहीं बोल सकते, ना सरकार बोल सकती है। वो तो देखिए, वो अपने काम में बदस्तूर जारी हैं। उन्होंने एक हिंदुत्व का एजेंडा सेट किया हुआ है। वो चाह रहे हैं कि चाहे वो उसका बोलिए रुकिए मत, आज आप बोलिए। कोई भी रास्ता, चाहे वो कम्युनलिज्म हो, चाहे जिस तरीके वो अपना जितना भी मतलब उनका जो रास्ता है,
वो करीब करीब आतंकवाद जैसा ही है। RSS आतंकवाद जैसा है, ठीक है। आई नो रतन शारदा वुड रिस्पॉन्ड टू दैट, आई एम कमिंग टू यू। ठीक है, शहजाद पूनावाला वांट्स टू पुट अ इन्होंने पॉइंट। कहा ये निजी राय है। इन्होंने कहा, अरे एक सेकंड, अब्दुल बासित साहब, एक सेकंड, आतंकवादी संगठन। ठीक है, उसका जवाब अभी लेंगे रतन शारदा साहब से, पहले सुन लेते हैं बीजेपी का क्या कहना है इस पे। 5 सेकंड। इन्होंने कहा कि ये मेरी निजी राय, उनकी निजी राय है। तो लालू प्रसाद ने जब कहा कि सिमी मासूमों का एक ग्रुप है, तो वो भी निजी राय थी। और दूसरी बात, ये अजमल कसाब जो आया था पाकिस्तान से, ये कौन सा हिंदू था क्या? ये अजमल कसाब कलावा पहनकर आया था, पर अजमल कसाब हिंदू था क्या? अब्दुल बासित साहब, ये हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, ये इनका फिलॉसफी, ये इनकी पार्टी की विचारधारा, इसलिए सिमी मासूम है, इसलिए सिमी मासूम है। जिस टाइम कसाब का नहीं, पीएफआई आतंकी संगठन है, हाँ या ना? उसमें नहीं, पीएफआई मासूम है, आतंकी है। उसमें भी गुजरात के उसमें भी देखिए, पीएफआई एक सेकुलर संगठन है। अच्छा, किसी प्रकार का उनका आतंकवाद से लेना देना नहीं है। आप जो मर्जी उनको कहीं से कहीं तक जोड़ते जाइए। जी हाँ, नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, एनआईए कह रही है उसके बारे में, अब तो बिहार पुलिस कह रही है, क्योंकि आपको पता ही नहीं। पीएफआई के बारे में कमेंट्स करना, आप पहले जानकारी लीजिए। पीएफआई पार्टी ने उनको बोला था कि दे आर द अवतार ऑफ सिमी, वो उनको याद नहीं है। वो बयान भी समझ रहे, लेकिन अपना बयान वो नहीं समझा पा रहे। रतन शारदा, व्हाट वुड यू टेल मिस्टर बासित? मिस्टर बासित हैज कम टू एन एग्जाम हॉल विद अ रेडी आंसर। आप कुछ भी सवाल करेंगे, उनका जवाब वही होगा, क्योंकि रट के आए हैं। आपके सवाल बदलेंगे, उनके जवाब नहीं बदलेंगे, ऐसी इनकी सोच है। President of Bihar party has a personal opinion, while he has official party opinion. Whom are they fooling? They may be learning a trick or two from Congress, but it's entirely foolish. It worries me that they are revisiting the saffron terror, Hindu terror story, which Congress failed, and they are trying to create the same story. These people actually provide cover fire, which I say again and again, to all the terrorists, all the sleeper cells. So all the terror attacks which were traced all these years, right from UPA days, even earlier, were all Hindus, they say. They were RSS people, they say. So all the people in the jail are all frauds. People who are hanged were all frauds. They were not liable. So how can they make the foolish statement? It is not even worth any mention. And if they say so, then what happens to the entire story of their own saffron terror? आप कहते हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास सरकारें थी, बिहार में सरकारें थी, सालों साल सरकारें थी, आप सिद्ध करते आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आप नहीं कर पाए क्योंकि है नहीं। आपको पीएफआई सेक्युलर दिखती है, आपको पीएफआई शांति भी दिखती है, लोग इसका जवाब देंगे। मैंने आपको टोका नहीं था, अपनी जबान पे लगाम दीजिए, देश की रॉ क्या कर, आप जबान के लगाम दीजिए, मैंने आपको टोका नहीं था। आप देश के फोर्सेस को क्वेश्चन कर लीजिए, सारी संस्थाओं को क्वेश्चन कर लीजिए। नहीं, आप बासित साहब, आप काउंटर मत करो। नहीं, ये काउंटर की बात ही नहीं है। आप जो रॉ से सवाल पूछ रहे हैं, अब आपसे जब पूछा मैंने तो आप कह रहे हैं निजी कमेंट है, आप उसके आगे बढ़ ही नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि पीएफआई सेक्युलर, आरजेडी क्या है? इन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है, इनको सूझता नहीं है। ये लोगों को बचा रहे हैं टेररिस्टों को, इन्होंने हिंदू लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से, उनके ऊपर शक डाला है। यानी आरजेडी, अच्छा, आरजेडी इज आल्सो अ कांग्रेस एलाय बाय द वे मिस्टर बासित। बड़ा एंटी हिंदू कौन हो सकता है? और ये स्क्रिप्ट, पाकिस्तान से आने वाले हिंदू वो भी जासूस हो सकते हैं, इनके आरजेडी ने कहा। मतलब सताए हुए लोग जो है हिंदू, वो भी भारत नहीं आ सकते, ये इनका स्टैंड है। लेकिन but let's Mr. Sharda, let's just focus on the first bit. Abdul Basit Saab has not been able to explain what his leader meant. I don't comment that पाक एजेंट्स आर हिंदूज, इसका क्या मतलब हुआ सर? ये पाक एजेंट अगर कोई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पाक एजेंट उनका लगातार हिंदू कौन सी, आप कहां से उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते वो आतंकवादी हैं या देश के। नहीं तो आप कैसे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं कि पाक एजेंट जो है वो हिंदू है? ये कहां छपा था? ये डेटा बता दीजिए। कहीं छपा था, अखबार में आया था कि कहीं और से निकाला आपने? हिंदू का बादस्तूर आना जारी है, बिल्कुल जारी है, मगर ये मैं उनके ऊपर पाक दलाल, आपके नेता हिंदुओं को पाक दलाल कह रहे हैं। तो ना हिंदू पाकिस्तान आ सके, ना हिंदू या भारत में आ सके, ये इनकी चाल है। आपको बांग्लादेश की रिफ्यूजी चाहिए, आपको ओके, let's put another आप उनको बदनाम करेंगे। ओके, रतन शारदा, अब्दुल बासित, लेट्स ब्रिंग इन दानिश कुरैशी, सेक्युलर चैंपियन दानिश कुरैशी। दानिश कुरैशी साहब,
बासित साहब मैं आऊंगा, अब आप सोचिए, देखिए तब से आप एक ही चीज बोल रहे हैं, अब आप उससे आगे बढ़िए। मैं तो बढ़ रहा हूं, आपसे आगे बढ़ के मैं दानिश कुरैशी पे जा रहा हूं। दानिश कुरैशी, ये बताइए, दानिश कुरैशी इज ऑफिशियली MIM person, why are you calling political analyst? Look at his biography on the Google. Why can't he come as MIM person? Why are you shielding him? Danish Qureshi, what do you make of the comment by the RJD Neta Jagdanand Singh? All Pak agents are Hindus. I think I am not agree with the statement of Mr. Ratan Sharda जी। रतन शारदा जी ने ये जो रतन शारदा ने ये थोड़ी बोला है, सारे मतलब ये जो ये जगदानंद सिंह ने बोला है। भाजपा के जो लोग हैं, सुनिए मैं बताऊं आपको, कवर का नहीं मैं वो स्टेटमेंट नहीं, मैं रतन शारदा जी के स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। पहले स्टेटमेंट पे तो जवाब दीजिए ना, वो उस पे बात कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना इसमें। अच्छा मैं जवाब देता हूं। MIM लीडर आरजेडी के जो नेता ने कहा है, जो मैंने सुना उनके वीडियो में, उसी से निकल के जो आया है, सुन तो लीजिए आप सुन लीजिए, रतन शारदा जी को भी सुना दीजिए, पूनावाला जी को भी सुना दीजिए। जो निकल के आया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि आरएसएस के हिंदू, ठीक है, आरएसएस का हिंदू मतलब पूरा देश का हिंदू नहीं हो गया। आरएसएस के हिंदू नहीं है, वो कह रहे हैं या तो आरएसएस के होते हैं या हिंदू होते हैं। देखिए मैं फिर से चला देता हूं, अगर आप एक बार में नहीं सुन पाए तो सुन लीजिए वापस, आप टेप ऑन करके सुन लीजिए, या तो मुझे सुना दीजिए। मैं आरएसएस का हिंदू मुस्लिम से क्या मतलब है, आप बताइए। दूसरे नंबर की बात सुनिए, आरएसएस में तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी है ना। लेकिन आप इंटरवीन क्यों कर रहे हैं? आप बाकी सारे लोग बोल रहे थे तो आप खामोश थे। नहीं, क्योंकि वो जवाब दे रहे थे ना दानिश कुरैशी साहब, आप भी अगर जवाब देंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, आप बताइए। 0.5 हिंदू है, पूरे हिंदुओं का से ना जोड़िए। चलिए बोल लीजिए, आप बोलिए पहले। हाँ, आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, अमेरिका भी। देखिए सवाल क्या है इसमें, प्रॉब्लम हमारा ये आके खड़ा हो गया है कि हमने एक तरफ पूरी कम्युनिटी को खड़ा कर दिया है कि इसमें कट्टरवादी नहीं हो सकते, उसमें एजेंट नहीं हो सकते, उसमें आतंकवादी नहीं हो सकते। हाँ, प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि मैं दिल से कभी माफ नहीं करूंगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट प्रॉब्लम ये है कि आप एक बेस कम्युनिटी की बात करेंगे तो उसमें इस तरीके का नोटोरियस। ओके, देन लेट मी आस्क यू दिस दानिश कुरैशी, स्ट्रेट क्वेश्चन, एजेंट जो है, स्ट्रेट क्वेश्चन, डू यू एग्री विद व्हाट जगदानंद सिंह हैज सेड? सकता है ये आपको सोच और समझ लेना पड़ेगा। Do you agree? So then are you then suggesting that you agree with every word that he has spoken? All Pak agents are Hindus. अब मानते हैं आप? No, not every word, but what he has spoken about the वो तो RSS बोल Hindu, रहे हैं, I am agree he is with that. saying. What he has spoken about the RSS Hindus. He has I'm not talked even about going entire on what Hindu he said community. about the RSS. I'm only asking you, where have you got this data from that you're defending this? नहीं, I am going on that only. डेटा दिखाइए। अरे you can see डेटा दिखाइए, number of people. डेटा दिखाइए, पिछले 70 साल का डेटा दिखाइए, aligned with the ISI and all that. 4-5 एग्जाम्पल बता दीजिए, कसाब का भी आप नाम लेना चाहेंगे, या और भी जो बाकी जो कश्मीर में भी जो आतंकी मरे हैं उनका भी नाम अगर आप लेना चाहें तो आप बता सकते हैं। देश के अंदर में हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के खातिरों को बचाव पक्ष का वकील मिला है। छोड़ दीजिए, आप यहाँ बैठ के जजमेंट नहीं देंगे, आप यहाँ बैठ के जजमेंट नहीं देंगे कि कौन गुनहगार है और कौन नहीं है। अगर उन्होंने कहा है, सुनिए मेरी बात, अगर उन्होंने कहा है तो भाजपा में आरएसएस में अगर लगता है कि गलत कहा है तो उनके खिलाफ आप जाइए लीगल मामले में। तो आपके आप ये मत कहिए कि किसी भी कम्युनिटी, क्या एक दुनिया में कोई कम्युनिटी ऐसी है जिसके अंदर में कोई नोटोरियस एलिमेंट पैदा ना हुआ हो? आप ये कहना चाहते हैं? उन्होंने जो कहा उसके प्रॉब्लम हमारा क्या है, हमारे देश में अभी शहजाद बात कर रहे थे तुष्टिकरण की। अरे ये हिंदुओं का तुष्टिकरण नहीं है तो क्या है? मतलब आप बात ही नहीं करेंगे। आप वो जो गैर कानूनी तरीके से काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, उसके खिलाफ आप बात नहीं करेंगे। उसके खिलाफ क्या है गैर कानूनी तरीके से? किसके बारे में बोल रहे हैं आप? गैर कानूनी तरीके से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, आप बता दीजिए। अरे वहां जो सच्चाई है उसको आप स्वीकारने के लिए तो बता दो ना कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप सच्चाई स्वीकार नहीं करेंगे, What organization? Tell me the name of it. No, let's take names. Danish Qureshi. Okay, now tell me, if you believe RSS is a terror organization, जो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं उसमें बैन कर दीजिए सर। प्रॉब्लम तो यही है ना कि जिनके ऑपोजिशन रूलिंग स्टेट हैं वहां उन्होंने बैन नहीं किए, कांग्रेस ने जो उसको बैकअप दिया है तभी तो वो यहां तक पहुंचे हैं। आरएसएस बीजेपी के शासनकाल में तो फैली नहीं है, तो कांग्रेस आरजेडी सेक्युलर नहीं है, जिसके ऊपर ये शहजाद भाई और बाकी के लोग तुष्टिकरण का आरोप लगा रहे हैं। प्रॉब्लम यही है, मैं आपको देखिए, मैं आपको कांग्रेस आरजेडी सेक्युलर है कि नहीं? देश
सुनिए सुनिए सुनिए, देश में दो राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, एक विपक्ष का था रतन शारदा, let him have his say. I'm coming to you. Shehzad, there I'm coming to you. उनको मुबारक। अब आप बताइए कौन थे यशवंत सिंह? तो उनके पास तो अपना कैंडिडेट भी नहीं है प्रेसिडेंट का, और उनके ऊपर आरोप लगता है तुष्टिकरण का। इनका प्रॉब्लम यह है कि ना वो ठीक से तुष्टिकरण कर पाते हैं, ना ही वो ठीक से हिंदुवादी हो पाते हैं। आप दोनों बयान को जस्टिफाई और सब्सटैंशिएट नहीं कर पा रहे। रतन शारदा, बिफोर आई कम टू यू, शहजाद, क्विक पॉइंट। Look, first of all, he has said these people, their ecosystem says आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता. But now today, even the refugees who are coming from Pakistan, who are सताए हुए of Islamist terror, they are becoming आतंकवादीज. Mahatma Gandhi had called them refugees who should deserve a place in India, but these two people are calling them आतंकवादीज. Imagine that first. Secondly, they are saying PFI is peace-loving organization, RSS is terror organization. 2004 से 14 सरकारें थी और ये प्रणब मुखर्जी जी गए थे उसके कार्यक्रम में, तो एक आतंकवादी संगठन के कार्यक्रम में गए थे. और third point I want to ask is that today the discussion is only on this, that whether you consider PFI a terrorist organization, and why do you start blaming Hindus for everything? It is to give cover fire to organizations like PFI. Now court has said PFI is an extremist outfit. Kerala High Court has said this. Danish Qureshi and Mr. Basit, is Mr. Jagdanand right or is the High Court right? मिस्टर बासित, बताइए। देखिए, शहजाद पूनावाला साहब की बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसका कोई मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं देना चाहता, मगर सन 90 से बादस्तूर नहीं, बट ये निजी बात नहीं कह रहे हैं, ये तो कोर्ट ने जो बोला है ये वो कह रहे हैं। जगदानंद साहब का बात आपने बोल दिया कि वो निजी है, ये इनकी निजी राय नहीं है, ये कोर्ट की राय पढ़ रहे हैं। वो कॉपी लेकर आया हूं। नहीं, बदस्तूर जाना आप क्यों उन्हें आने दे रहे हैं? मेरी बात समझिए। पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान में रहे, क्यों आप उन्हें यहाँ बुलाना चाहते हैं? आप ये बताइए। सरकार से मेरा सवाल है, महात्मा गांधी जी ने जो बोला था गलत था क्या? मनमोहन सिंह की सरकार जिसमें आप थे उसमें भी बुलाया था उनको। मनमोहन सिंह की सरकार में भी लागू किया था 2 साल के लिए सीए, जिसमें कि उनको बुलाया गया था, वो भी गलत था। महात्मा गांधी ने भी कहा वो भी गलत था। महात्मा गांधी और आप कह रहे हैं पाकिस्तान के हिंदुओं के प्रति आपके मन में कोई संवेदना नहीं है। रोहिंग्या को कारपेट देकर बुलाओ, पर पाकिस्तान में प्रताड़ित हिंदू ना आ सके, और रोहिंग्या क्या आपके दामाद लग रहे हैं? दूसरा, वो पाकिस्तान है, रोहिंग्या को क्या करना चाहिए बताइए? रोहिंग्या को क्या करना चाहिए? क्यों हम पाकिस्तान के लोगों को संवेदना रखेंगे? क्यों? ये इनका असली चेहरा है। रोहिंग्या को रेड कारपेट, पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को नो एंट्री। हिंदू आतंकी इस्लामिस्ट टेरर को शील्ड करेंगे, आरएसएस आतंकवादी, पीएफआई को तो नोबेल पीस प्राइज देंगे। ये इनकी मानसिकता है तुष्टिकरण के चलते, ये इनकी मानसिकता है। कांग्रेस और आप ट्विन सिस्टर्स ऑफ अपीजमेंट है। PFI द सेकुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इट्स 100% सेकुलर। सिमी का अवतार लेफ्ट पार्टी ने कहा था, लेफ्ट की सरकार ने हलफनामा दिया, इट इज एन अवतार ऑफ सिमी। हिंदू वाहिनी, सनातन हिंदू, ये अच्छा सिमी भी पीस लविंग है। जमात है, सिमी भी पीस लविंग है। जमात है आरएसएस की। अच्छा अब्दुल बासित, अरे सुन लो ना, सिमी भी पीस लविंग है क्या? देखिए, सिमी का मामला कोर्ट जाने। अरे भाई, उसमें भी लालू जी ने बोला नहीं मासूम है, और सिमी का ही अवतार पीएफआई है, केरल की सरकार ने बताया। वो लालू जी का निजी बयान था, जैसे जगदानंद सिंह का निजी बयान है। क्लोजिंग कमेंट्स फ्रॉम यू, रतन शारदा। See, the RJD person is actually a PFI person coming in the name of RJD. The way he's defending PFI shows its true colors. I am also now relieved that they have very clearly shown their hate for Hindus who are persecuted, killed, raped, converted in Pakistan. They don't want them to escape that hell, and they want to enjoy all the goods for Bangladeshi infiltrators and also for the Rohingyas. But for Hindus, they have not a single tear drop, and they are revisiting the saffron theory, which failed totally, saffron terror theory, and their entire anger is they are not able to retain their Muslim vote bank, nor they are able to prove anything, because when they call RSS terrorist organization, they must prove, they must show. They were running the country for 70 years. They got to do a thing about RSS, because RSS has nothing to hide. They work for the nation, and their PFI provides terrorists to Syria, it provides terror to ISIS, and he is defending those people. So what is there left to speak about now? All right, we've run out of time. Shehzad Poonawala, Ratan Sharda, Abdul Basit, Danish Qureshi, thank you for joining us on debate number 1.